पन्नू साहब, अब भारत में हजारों तलबा मोदी हुकूमत की तालीम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ इस वक्त सड़कों पर हैं। ये एहतजाज अब भारत की मुख्तलिफ रियासतों तक फैल रहा है। क्या आपको लगता है कि आगे चलकर ये एहतजाज बड़ी अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀਜੇਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਦੇਸ਼, ਫੇਕ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਹਿੰਦੂ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ सूबे ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ मुल्क बनाना इसका हल है। बिल्कुल ठीक है, हल बता दिए पन्नू साहब। भारतीय पंजाब और दीगर रियासतों में देखा जाए तो इस तालीमी स्कैंडल के हवाले से बताइएगा कि कितने नौजवान मुतासर हुए और इस तालीमी बहरान के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1950 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਯੂਥ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਫਾਦਰਸ ਸੀ ਇਸੇ ਯੂਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ, इस कॉन्स्टिट्यूशन दे हेठ ओ नहीं। बिल्कुल पन्नू साहब, निशानदेही की है जो नाइंसाफ़ी हो रही हैं उसी की वजह से लैदगी की तहरीकें जो हैं वो भारत के अंदर चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हैदर हयात साहब की जानिब चलते हैं। हैदर साहब, भारतीय तलबा और CJP के एहतजाज ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। दूसरी तरफ 2014 से अब तक 152 पेपर लीक्स भारतीय तालीमी निज़ाम में करप्शन का मुँह बोलता सबूत हैं। मोदी हुकूमत ने एहतजाज को क्या समझते हैं कि इतना गैर संजीदा क्यों लिया कि हालात इस कदर बिगड़ गए हैं? उज़ैर, इसमें कोई शक नहीं है, 152 पेपर लीक्स हुए हैं जब से 2014 से ये घटिया शैतान भारत में बरसर इक़्तिदार है। और जो लावा था ये तो ज़ाहिर सी बात है उसी वक्त से पक रहा था, लेकिन भारत में खौफ की एक फिजा थी। 11 साल तक लोग वहां पर खौफजदा थे क्योंकि गोदी मीडिया के तवस्सुत से हर उस शख्स को निशाना बनाया जाता था, उसको गद्दार कहा जाता था, उसको मुल्क दुश्मन कहा जाता था जो मोदी की घटिया पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था। मैं मल्टीपल टाइम्स ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि गुज़िश्ता साल जब हमने जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, उसका एक फायदा भारतीयों को ये हुआ
कि वो सेम इंडियंस जो 11 साल से इस गोदी मीडिया की वजह से, मोदी हुकूमत की घटिया पॉलिसीज की वजह से खामोश थे, उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने वो खामोशी के और खौफ के बुत तोड़े और भारत में मोदी की पॉलिसीज को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू किया। तो ये सिलसिला शुरू होता है जब हमने भारत को शिकस्त दी और उसके बाद पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेचर बढ़ा, लोगों को मौका मिला ओपनली खुलकर क्रिटिसाइज करने का, और उसके बाद जो है वो एक के बाद एक बबल जो है वो फटना शुरू हो चुका है भारत के अंदर। आप भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज देख लें, हमने बड़ा अरसा ये शोर सुना जी कि राइजिंग इंडिया है, ये शाइनिंग इंडिया है, यहाँ पर इतनी जो है वो इन्वेस्टमेंट आ गई है बाहर से। इसमें शक कोई नहीं है कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन एक अच्छी इकोनॉमी नहीं है। भारत का जो आम शहरी है वो, उसके हालात जो है वो बेहतर नहीं हुए, उसकी जिंदगी का मेयार बेहतर नहीं हुआ, उल्टा उसकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। और अगर मैं सिर्फ 2026 की बात करूं उजैर, तो एशिया की, मैं सिर्फ इस रीजन की बात नहीं कर रहा, एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी जो है वो इंडियन करेंसी है, जो तकरीबन 7% डिप्रिशिएट हुई है, और पाकिस्तान की करेंसी जो है वो 0.76% पॉजिटिव है। तो ये जो सारी बातें हैं ये भारत का नौजवान समझ रहा था। 152 पेपर लीक्स, ये कहने को तो शायद ठीक है जी 152 पेपर लीक्स हुए हैं, लेकिन इससे 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुतासर हुए हैं। तो 7.5 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ इस साल के अंदर जो पेपर लीक्स हुए हैं उसके अंदर 20 से ज्यादा तलबा ने सुसाइड्स किए हैं। तो ये जो लावा था ये अल्टीमेटली फटा है। अब भारत की यूथ, भारत का नौजवान वो सड़कों पर है, और जो मैं सेंटिमेंट वहां पर देख रहा हूँ नौजवानों का, वो अब सिस्टम में तब्दीली शायद नहीं चाहते, वो एक रीसेट चाहते हैं सिस्टम में, जिसमें ये घटिया शैतान वो भारत में इक्तदार के सिंहासन पर ना हो। आपने देखा वो वीडियोस, आई एम श्योर आपने देखी होंगी, जिसमें नेपाल की तर्ज का इनकलाब लाने की बात नौजवान कर रहे हैं जंतर मंतर में, और वो कह रहे हैं सिस्टम से डिसएसोसिएशन का आलम ये है कि वो पार्लियामान को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। यानी वो ये समझते हैं कि इस पार्लियामान के अंदर कोई ऐसा सेन शख्स नहीं है जो ताकतवर हो, जो जिसके पास इख्तियार हो, जो उनके बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से फैसले कर सके, क्योंकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल हैदर, आप सही कह रहे हैं। और जो ओल्ड गार्ड बैठे हुए हैं असेंबलीज के अंदर भारत के, वो ये नौजवानों के मसाइल को ना समझ पा रहे हैं, ना उन्हें, जब समझ नहीं पा रहे तो एड्रेस क्या करेंगे। इसलिए हमने देखा मामला में सैंडल हुआ और नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। हैदर, इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे कि बॉलीवुड फनकार जो हैं उनकी हिमायत ने इस तहरीक में बड़ी जान डाली है ग्लोबली। नसीरुद्दीन शाह हो जाएं, अरिजीत सिंह हो जाएं, सलमान खान और आलिया भट्ट के जो खुले बयानात हैं, उसके बाद क्या मोदी सरकार बॉलीवुड पर भी अपने रिवायती सियासी असर रसूख से महरूम होती चली जा रही है? गोदी मीडिया की तरह इनको भी एक स्क्रिप्ट जाता था, ये भी इस तरह की बात जो है हुकूमत के हक में कर देते थे, लेकिन इस बार मामला उलट दिखाई दे रहा है। देखिए उज़ैर, इसमें कोई शक नहीं है, बॉलीवुड भी उसी तरह जो है वो खौफ का शिकार था, लेकिन बॉलीवुड में चंद ऐसे घटिया एलिमेंट्स जरूर थे जो धुरंधर और बॉर्डर जैसी फिल्में बनाकर मोदी के जो कह लें कि उसका जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट करते थे। इवन मैंने तो अभी भी इंडियन चैनल्स पर बैठकर ये बात की है कि आदित्य धर को चाहिए कि फौरी तौर पर धुरंधर 3 जो है वो बनाना शुरू करे और उसमें लिखे और उसमें ये स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज मेंशन करे कि ये जो सीजेपी है ये पाकिस्तान ने, आईएसआई ने फंड की है, और पाकिस्तान की फंडिंग के ऊपर जो ये निकले, इवन राहुल गांधी को भी आईएसआई के चीफ ने फोन किया था, तभी वो 7 आरसीआर जो मोदी की रेजिडेंस है उसके बाहर जाकर धरने पर बैठा। तो वो ये सारी चीजें मेंशन करे, अदरवाइज मोदी की मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारत में हर घटिया चीज जो गुज़िश्ता 12 साल में हुई है वो धुरंधर के अंदर उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, और बॉर्डर जैसी फिल्मों के अंदर उन्होंने माजी में भी दिखाने की कोशिश की है कि उसके पीछे पाकिस्तान है। बाकी जहां तक बात बॉलीवुड, बिल्कुल हैदर, आपने सही निशानदेही की है कि धुरंधर जैसी जो मूवीज हैं वो तो, लेकिन फिर दिलजीत जैसी जो मूवीज बनाते हैं लोग, जो रिसेंटली उन्होंने मूवी बनाई है और जो हकीकत के करीब तरीन है, हकीकी वाकयात पर मबनी है,